Good morning, good afternoon and good evening. Whenever you are watching my video, in today's session I am going to teach you how to describe a gross specimen. Because to describe a gross specimen is an art. How much thing you are picking up in the gross description. It will help you to reach the correct diagnosis. So your eye should be very observant to pick up the thing and should be very sharp. This is our museum specimen of pathology. So I am taking one by one of all these specimen. So this particular specimen is of appendix. You can see this is specimen of the appendix. This is also specimen of the appendix, but when we compare this from this, so in this particular appendix it is swollen and you can appreciate the congested vessels over the serosal surface. So all these features are suggestive of acute appendicitis. So you can say that this is appendectomy specimen showing feature of acute appendicitis. But sometimes gross feature changes depending on the depth of the inflammation. जितना ज़्यादा inflammation होगा उतना serosal surface पे alteration होगा. Sometime you can see the serosal surface is blackish brown. That means gangrenous in appendix बन चुकी है. And in this appendix, this is not swollen, but when you will see carefully, you will see that some vessels, tortuous vessels are there, but the depth of the inflammation is limited. We may ask you the question, what are the causes of appendicitis? Then you have to be very specific. You have to answer in this manner. There are obstructive causes and there are non-obstructive causes. Obstructive causes means luminal obstruction कब हो रहा है? In tumor, in case of fecolith, in case of the lymphoid hyperplasia, worms or any stone. So these are obstructive, and in non-obstructive causes comes the hematogenous spread, vascular occlusion or trauma. And other question comes is what are the complications of the appendicitis? Then comes the peritonitis, abscess formations likewise. This is cholecystectomy specimen. In the lumen there is a large blackish color stone. So based on this feature, what feature means you have to look for the mucosa. So mucosa is not velvety. Normally the gallbladder mucosa is velvety. The wall is thickened. You can see the wall is thickened. So these features are favoring for chronic cholecystitis. And whenever you are we are providing you the specimen of the gallbladder, you have to see either it is the size of the gallbladder, either it is enlarged or shrunken. So this particular specimen is enlarged. You have to look for wall thickness, then serosa, and you have to look for the mucosa. Either there is a velvety appearance is there or not, or it becomes flattened or atrophied, and what is there in the lumen. Like here, there is a stone, but sometimes you may find bile or blood. So these are the features you have to look for. So this is specimen of the cholecystectomy, and the diagnosis is cholecystitis with cholelithiasis. All these specimens are of uterus and cervix. You can see this is cervix. You can see cervix, and this is uterus. And in uterus you can see a well-defined grey-white firm mass, and this is showing cut surface. The cut surface is firm, homogeneous, and you can see the whirling. This is again the same specimen. You can see the endometrial cavity, and in the muscle part there is a well-defined grey white firm mass, and the whirling is well appreciated. So all these are intramural leiomyoma because they are present in the muscle. When they are protruding out from the serosa, they are called subserosal leiomyoma. This again specimen of the leiomyoma. This is cervix, this is uterus wall, means muscle. In the muscle layer there is a leiomyoma. So based on the location they are of three types: intramural, subserosal and intramucosal. When they are protruding through endometrium, means there should be lining of the endometrium and they are protruding inside the endometrial cavity, they are called submucosal. When we are providing you this specimen of the uterus and cervix, you have to look for, apart from the fibroid, you have to look for either any growth is there in the endometrial cavity or there is a growth on the cervix. In this particular specimen there is a no growth on the cervix, but किसी स्पेसिमेन में हो भी सकती है, तो आपको यू हैव टू लुक फॉर कि कोई ग्रे वाइट मास है. इस स्पेसिमेन में ये ग्रे वाइट मास दिखाई दे रहा है, फ्राइबल मास है.
जो कि हेमरेजिक सरफेस भी है, तो दिस इज एंड ऑक्यूपाइंग द एंडोमेट्रियल कैविटी, सो दिस इज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ग्रे वाइट फर्म एंड फ्राइबल एरियाज दिखाई दे रहे हैं, सो दिस इज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। दिस स्पेसिमेन इज सिस्टिक स्ट्रक्चर, यू कैन सी द सिस्ट वॉल, this is cyst wall and this is cut open specimen showing the luminal content. So in the luminal content you are seeing the hair tuft with the pertaceous, आपको ये चिकना चिकना pertaceous keratinous material दिखाई दे रहा है। Dear student, I want to at this point कि जब भी आपको कोई स्पेसिमेन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप ऑर्गन का आइडेंटिफिकेशन करें ही करें। आपको ऑर्गन आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है बिकॉज दीज आर द पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन। सो जो आपको दिख रहा है, व्हाट स्पेसिमेन यू आर सीइंग, कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, कैसी सरफेस है, तो कट ओपन सिस्टिक स्ट्रक्चर है, तो जस्ट से कि दिस इज कट ओपन सिस्टिक स्ट्रक्चर, रादर टू आइडेंटिफाई कि दिस इज ओवरी। किसने कहा कि वो ओवरी? आप जब तक आपको ट्यूब नहीं नजर आई तो आप क्यों बोलना चाह रहे हैं कि दिस इज ओवरी? सो दिस इज कट ओपन सिस्टिक स्ट्रक्चर कंटेनिंग केराटिनस मटीरियल and pertaceous material with the hair tuft. So this is dermoid cyst, or nowadays we are saying it is a mature cystic teratoma. Now moving next, this is again cut open cystic structure. क्योंकि स्टूडेंट गलती करते हैं, इसको सॉफ्ट टिश्यू मास बोलते हैं। सो रादर टू से सॉफ्ट टिश्यू मास, यू से दिस इज सिस्टिक स्ट्रक्चर। दोनों के अंदर वर्ड में डिफरेंस है। सो दिस इज सिस्टिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज पर्टिकुलर यूनिलोकुलर सिस्ट, केवल एक ही सिस्ट कैविटी है इसके अंदर। सो यूज द वर्ड यूनिलोकुलर सिस्ट कंटेनिंग हेयर। सिस्ट इज मल्टीलोकुलर, यू कैन से दिस इज अगेन सिस्टिक स्ट्रक्चर। डोंट यूज द वर्ड सॉफ्ट टिश्यू मास, सॉफ्ट टिश्यू डिफरेंट हो जाता है। दिस इज सिस्टिक स्ट्रक्चर कट ओपन, मल्टीपल लोकुलेशंस आर देयर, यू कैन सी द मल्टीलोकुलेशन। ये एक कैविटी है, दूसरी कैविटी, दे आर सेपरेटेड बाय द सेप्टास, ये बीच बीच में सेप्टास बन रहे हैं इसके अंदर। बट यहाँ पे आप स्पेसिमेन को अगर आप उल्टा करेंगे तो देखेंगे कि आपको फैलोपियन ट्यूब नज़र आ रही है। सो यू कैन से कि दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी शोइंग मल्टीलोकुलेटेड सिस्ट। तो इस टाइम पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि ये इट कैन बी सिस्ट एडिनोमा ऑफ द ओवरी एंड लोकुलेटेड। दिस इज अगेन सिस्टिक स्ट्रक्चर कट ओपन बट ओनली यूनिलोकुलर सिस्ट इज देयर एंड समटाइम ये कुछ पार्ट इसका हेमरेजिक है। रुको, दिस इज you can appreciate the fetus, this is blood clot and placental part and some are fluid filled vesicles is there. So this is specimen of the mole and this is incomplete mole. Why incomplete mole? Because in incomplete mole only you can find the fetus and partly normal placenta and partly फ्लूइड फील्ड वेसिकल। अगर ये कंप्लीट मोल होता तो कंप्लीटली यूट्राइन कैविटी में फ्लूइड फील्ड वेसिकल ही होते, और अगर ये कंप्लीट मोल होता तो इसके अंदर सारे यूट्राइन कैविटी, यू कैन सी द इन यूट्राइन कैविटी कंप्लीटली फिल्ड विद द फ्लूइड फील्ड वेसिकल एंड दिस इज हाई पावर। सो दिस इज स्पेसिमेन ऑफ द orchidectomy specimen and at the upper pole you can see the spermatic cord and this is testis part entirely replaced by the gray white firm mass. You can see the homogeneous mass and at the upper pole the normal testis is there. So the important thing is it is a well demarcated and the entire surface is homogeneous, means एक जैसा है, firm है, कहीं इसमें grey white area दूसरे एरिया नहीं है. So these feature homogeneous nature of the tumor suggest for seminoma. While this specimen there is a variegated appearance, आपको काफ़ी वेरिएशन इन द दिखाई दे रहे हैं, कहीं सिस्टिक एरिया, कुछ हेमरेजिक एरिया, कुछ फ्राइबल सा एरिया नज़र आ रहा है, कुछ ग्रे वाइट है. तो दैट मीन्स यू यूज़ वर्ड वेरीगेटेड अपीयरेंस. ये नॉन सेमेनोमा था, मिक्स जर्म सेल ट्यूमर मीन्स नॉन सेमेनोमेटस कंपोनेंट भी था, लेकिन आप स्टूडेंट इसको जस्ट डिस्क्राइब कर लें कि दिस इज सॉफ्ट टिश्यू मास कट ओपन शोइंग वेरीगेटेड अपीयरेंस, और जो फीचर बताएं वो. अगर आप इसको टेस्टिस नहीं भी बोले तो चलेगा, क्योंकि इस स्पेसिमेन में कहीं स्पर्मेटिक कॉर्ड नज़र नहीं आ रही है. सो दिस इज़ वेरी important and very easy diagnosis. You can say this is hydrated cyst based on this pearly white membranous structure. So these are the pearly white membranous structure, thin walled. Sometime you may find the daughter cyst also, लेकिन इसके अंदर आपको daughter cyst नज़र नहीं आ रही है, वो छोटी गोल फ्लूइड फील्ड वेसिकल की तरह नज़र आती है. फिर आपको वाइवा में इसका ऑर्गेनिज्म वगैरह पूछ सकते हैं.
This is outer surface of the liver. You can see so many nodules on the surface of the liver. So outer surface is nodular, and this is cut surface. In the cut surface, you can see so many venular structure and multiple nodules are there. Multiple nodules are there. So this is cirrhotic liver based on the micro और मैक्रो. ये मिक्स टाइप का है, 3 मिलीमीटर से ज़्यादा तो 3 मिलीमीटर से ज़्यादा के होते हैं ये नोड्यूल, तो मैक्रो नोडुलर, और 3 से कम तो माइक्रो. इसमें दोनों ही टाइप के दिखा रहे हैं, इसलिए ये मिक्स्ड सिरोसिस है. सो दिस वाज अवर स्पेसिमेन. दिस इज वेल सर्कमस्क्राइब्ड नोडुलर स्ट्रक्चर and the outer surface you can see the capsulated. So हम well circumscribed का फीचर है, तो ये हमारा सजेस्ट करता है फीचर फेवरिंग फॉर द बेनाइन नेचर. तो हमारा ये वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कलर कैसा दिखाई दे रहा है आपको? येलोइश कलर का, और ये कैप्सूल दिखाई दे रहा है जो कि स्ट्रिप्ड ऑफ हो रखा है. सो इट इज़ ए कैप्सुलेटेड. एंड द कट सरफेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कट सरफेस इज, you can see the cut surface is glistening, yellow, soft, so this and homogeneous. बट सम पार्ट में आपको नीचे ब्लैक ब्राउन एरिया नज़र आ रहा है, बट हमारा माइक्रोस्कोपी में कंफर्म हो गया था कि दिस वाज स्पेसिमेन ऑफ द लाइपोमा. देयर वाज नो एनी मैलिग्नेंसी वाज देयर. सो मेन एम है कि लाइपोमा है ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, पेल ग्लिसनिंग ग्रीजी कट सरफेस है. आपको कलर देख के ही पता चलता है. तो इस केस में आप फाइब्रोफैटी वर्ड यूज़ करना ज़्यादा अच्छी बात है, रादर कि आप सिस्टिक जब है सिस्टिक वर्ड यूज़ करें, फर्म है तो फर्म यूज़ करें, लेकिन ये फाइब्रोफैटी सॉफ्ट टिश्यू नोडुलर मास है. सो दीज आर द इंटेस्टिनल स्पेसिमेन. बिफोर दैट आई विल टेल यू कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन और दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन बेस्ड ऑन दीज फीचर. So this is small intestine. You can see the diameter is small. So diameter इसका छोटा होता है ये, और ये जो large intestine है इसका diameter बड़ा होता है. दूसरा important feature इसमें काफ़ी सेमिनुलर फोल्ड होते हैं जो कि इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर को और इसकी लेंथ, क्योंकि बहुत लंबा होता है तो उसको शॉर्टिंग में हेल्प करता है, तो काफ़ी क्लोज सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं. तीसरी इंपॉर्टेंट बात है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करवाती है कि इसके अंदर टीनिया कोलाई होते हैं. दिस इज टीनिया, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मसल बैंड होता है जो कि इसको सेपरेट करता है हॉस्ट्रा में. आपको दिखाई दे रहे हैं ये हॉस्ट्रा. सो ये हॉस्ट्रा होते हैं. और तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज अपेंडिस एपिप्लॉइकी. सो बेस्ड ऑन अपेंडिस एपिप्लॉइकी, हॉस्ट्रा एंड टीनिया वी आइडेंटिफाई द लार्ज इंटेस्टाइन. और ये काफ़ी बड़ी लार्ज डायमीटर की इंटेस्टाइन होती है. अगर आप नहीं बोल पाएँ कि दिस इज़ लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल, रादर यूज़ द वर्ड दिस इज़ इंटेस्टिनल स्पेसिमेन. बिकॉज पैथोलॉजी में डिस्टॉर्टेड भी हो जाते हैं तो हम नहीं बुरा मानेंगे. आप जस्ट बता दीजिए कि दिस इज इंटेस्टिनल स्पेसिमेन. व्हाट कैन यू सी इन दिस इंटेस्टिनल स्पेसिमेन? दिस इज इंटेस्टिनल स्पेसिमेन. एट द लोअर पोल यू कैन सी the growth is there, gray white growth is there in the lumen, and at the some part you can see the gray brown blackish friable area. So in the lumen there is a gray white growth. This is small intestine. You can compare this with this. This is large intestine. The diameter, you see the diameter, compare with this. So this is large intestine. What thing you can see? You can see in the lumen there is a gray white fragile growth is seen. So this is intestinal malignancies. Both are intestinal malignancy, just to describe. Again this is large intestine showing the gray white growth in the lumen. So हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अल्सरो इन्फिल्ट्रेटिव और अल्सरो प्रोलिफरेटिव. इसके लिए मैं ये डायग्राम दिखाऊंगी आपको कि जो अल्सरो इन्फिल्ट्रेटिव ग्रोथ है वो वॉल के अंदर रहती है. मीन्स ये ल्यूमन के अंदर नहीं जाती, वॉल से सीरोजा की तरफ जाती है. तो ग्रे वाइट ग्रोथ कहाँ दिखाई देगी हमें? म्यूकोजा से सीरोजा की तरफ. तो जो वॉल थिकनेस बढ़ती है, वाइल जो हमारी अल्सरो इन्फिल्ट्रेटिव ग्रोथ होती अल्सरो प्रोलिफरेटिव ग्रोथ होती है वो ल्यूमन के अंदर एज ए पॉलीपॉइडल मास की तरह. सो एग्जांपल दिस इज योर ल्यूमन. तो ल्यूमन के अंदर ये पॉलीपॉइडल ग्रोथ की तरह नजर आती है. सो अल्सरो प्रोलिफरेटिव ल्यूमन में नजर आएगी और अल्सरो इन्फिल्ट्रेटिव आपका सीरोजल थिकनिंग करवाएगी. So whenever we are providing the specimen, you can look for any ulcer. So this particular specimen showing the transverse ulcer. So this was came out or turned to be as a tuberculosis.
Let's see the example. This is, what is this? This is ulcero infiltrative growth. You can see the thickening of the wall. This is lumen. So this is lumen and there is a ulcero infiltrative growth, and in this particular example you can see ulcero proliferative. ये lumen को occlude कर रही है. And this specimen is of stomach. सबसे पहले देखिए कि इसमें हफाजेड रगे हैं, काफ़ी बड़े साइज में होते हैं ये रगे हैं, और जबकि इस प्रकार के जो फोल्ड होते हैं ट्रांसफर्स अलोंग द, जो आपकी लॉन्ग एक्सेस ऑफ इंटेस्टाइन के परपेंडिकुलर हैं इसके अंदर ये, सो ये आपके सर्कुलर फोल्ड्स हैं, लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर दीज आर द रगे, और यहाँ पे एक ग्रोथ नज़र आ रही है. सो दिस इज मैलिग्नेंसी ऑफ स्टमक. आज नीचे ले जाए. दिस इंटेस्टिनल स्पेसिमेन शोइंग ब्लैकिश ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ द सिरोजा. सो दिस इज गैंग्रीन ऑफ इंटेस्टाइन. Specimen. How do you identify this? Because this is skin and you can see the nipple and areola. Can you able to visualize the nipple and areola? So this is mastectomy. और सबसे important आप just ये बोलिए कि this is fibrofatty soft tissue mass. ये fibrofatty नज़र आ रहा है. Fibrofatty soft tissue mass covered with the skin and we can see the nipple and areola, and there is a multiple slicing of the, or red loafing has been there of this mastectomy specimen. So normally 99% of the time हम malignancy के लिए ही करेंगे ना, तो आप बता दीजिए कि मैम मोस्ट प्रोबेबिलिटीज़ है malignancy of the breast, क्योंकि फाइब्रोएडिनोमा के लिए तो कोई सर्जन नहीं करेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन में हमने आपको ट्यूमर का पार्ट एक्सपोज नहीं किया है, बट यहाँ पे किया है. देखो दिस इज कट सरफेस. पहले देखिए कि दिस वाज, यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज mastectomy specimen, fibrofatty skin and nipple and areola, and this is cut surface showing gray white tumor area. Mastectomy specimen like this, like fibrofatty mass is covered with the skin and nipple and areola. हम इसकी काफ़ी ब्रैड लॉफिंग करते हैं, मीन्स मल्टीपल कट लगाते हैं टू सी फॉर द ट्यूमर एरिया, और ये इसका कट सरफेस है. एंड यू कैन सी हियर, जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे ट्यूमर एरिया नज़र आता है. ये ग्रे वाइट ट्यूमर एरिया है और इसमें सिस्ट है कंटेनिंग द हेमरेज. तो किसी भी प्रकार का हो सकता है. इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन में इस प्रकार का ग्रे वाइट नज़र आया, आप वाले पर्टिकुलर स्पेसिमेन में किस. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू लुक फॉर, लाइक दिस इज निप्पल एरियोला स्किन, और जब हमने ब्रैड लॉफिंग किया तो आपको एक ग्रे वाइट ट्यूमर नज़र आया. यू हैव टू लुक फॉर एनी इन्फिल्ट्रेटिव मार्जिन, क्योंकि मैलिग्नेंसी है तो उसकी काफ़ी इन्फिल्ट्रेटिव मार्जिन्स नज़र आएंगी. This is nephrectomy specimen. How will you identify the nephrectomy specimen? By seeing the ureter arising from the pelvis. So this is नेफ्रेक्टमी स्पेसिमेन. अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है पेल्विस के मीडियल पोर्शन पे आपको यूरेटर, तो नो नीड टू से कि दिस इज किडनी. आपको नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है तो मैं बार बार कह चुकी हूँ कि आप ऑर्गन का नाम लेने की कोशिश न करें, जो जैसा दिख रहा है वैसा डिस्क्राइब करें. बट हियर वी कैन मेक आउट. सो दिस इज नेफ्रेक्टमी स्पेसिमेन. सो यू कैन नॉर्मली कॉर्टेक्स और मेडुलरी पोर्शन जो किडनी का होता है इजीली डिस्टिंक्ट होता है, बट हियर यू कैन नॉट मेक आउट द कॉर्टेक्स और मेडुला. सो देर इज ए इनडिस्टिंक्ट कॉर्टिको-मेडुलरी जंक्शंस एंड कॉर्टेक्स बिकम थिन आउट. देख लीजिए आपको ये कॉर्टेक्स जो हैं वो बिल्कुल थिन आउट हो गए हैं. एंड व्हाट एज यू कैन सी मल्टीपल डायलेटेड कैलिसेस आर देयर. और ये आपका पेल्विस वाला एरिया भी काफ़ी डायलेटेड हो चुका है. सो पेल्विक कैलिशियल सिस्टम इज डायलेटेड, cortical thinning. So these feature are favoring for hydronephrosis. Most probably कहीं ना कहीं यहाँ पे pelvis या ureter area में stone होगा. So this is, and the important thing is kidney is enlarged. This is again specimen of the nephrectomy. At this portion you can see the partly ureter arising from the pelvis, and this is normal kidney. And at the upper pole you can see at the upper pole well defined nodular gray white mass. In this specimen also you can see this is specimen of the kidney. There is a cortex. By identifying the cortex and the medulla, at the upper pole there is a well defined tumor mass is there. You can see the area of the hemorrhage. This is very friable, and by the color it is not grey white, it is yellowish tinge का color है, और we can say golden. ये लिपिड कंटेंट की वजह से होता है. सो बोथ ऑफ दिस स्पेसिमेन, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर ऑफ द रीनल सेल कार्सिनोमा. ये जनरली आरसीसी जो है वो पोलर होते हैं. सो स्पेसिमेन ऑफ द नेफ्रेक्टमी स्पेसिमेन शोइंग एट द अपर पोल ग्रे वाइट ट्यूमर मास. जब आपको किडनी का स्पेसिमेन प्रोवाइड करें तो ज़रूरी नहीं कि आरसीसी हो, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो या हाइड्रोनेफ्रोसिस हो. आपको वैक्स हमारे पास में ये है नहीं, बट वैक्सी अपीयरेंस होगा. समटाइम इट कैन बी एनलार्ज इन द केस ऑफ द एमाइलोइडोसिस और फाइनली लीड टू द कॉन्ट्रैक्टेड किडनी.
वाइवा में आपको ये सारे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड किडनी, ग्रेनुलर किडनी. सो दिस इज अगेन नेफ्रेक्टमी स्पेसिमेन है. यहाँ पे एक एंड पे हमें यूरेटर नज़र आ रहा है. अगर आपको नहीं आया तो मैं बार बार बता चुकी हूँ. सो इन दिस व्हाट कैन यू सी, मल्टीपल सिस्टिक वेरिंग साइज सिस्ट आर देयर बट दे आर नॉट कनेक्टेड विद द पेल्विस. सो दिस इज पॉलीसिस्टिक किडनी. द मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर फ्रॉम द हाइड्रोनेफ्रोसिस इज देयर. हाइड्रोनेफ्रोसिस से हम ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस में पेल्विक एलिसिस सिस्टम मतलब पेल्विस भी डायलेटेड हो जाएगा. बट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर जो मल्टीपल सिस्ट हैं दे आर नॉट कनेक्टेड विद द रीनल पेल्विस एंड ये जनरली ऑटोसोमल डोमिनेंट और जेनेटिक डिसऑर्डर है. दिस इज एम्पुटेशन स्पेसिमेन. यू कैन सी द स्किन. ये आपका स्किन है और यहाँ से क्या अराइज हो रहा है, ये एक्सोफिटिक ग्रोथ और इट इज़ कॉलीफ्लावर लाइक. बिल्कुल टिपिकल आपको कॉलीफ्लावर अपीयरेंस है. और आप ऊपर देखेंगे क्योंकि ये एम्पुटेशन का स्पेसिमेन है तो ऊपर से आपको बोन भी नज़र आएगी. ये वाला पार्ट है जो बोन का है. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ SCC, कॉलीफ्लावर अपीयरेंस एंड एक्सोफिटिक ग्रोथ. दिस इज स्पेसिमेन ऑफ द ट्राइकोबेजार, मीन्स कलेक्शन ऑफ द हेयर. They can be anywhere in the intestine. They can be in the stomach. They can be in the intestine, but they will take the shape of the thing where they reside. अगर stomach में होंगे तो उसका shape ले लेंगे, intestine में होंगे तो उसका shape ले लेंगे. Now I am taking the viva of view कि like ये specimen आपको मैं provide करूँ तो what will you say about this specimen? First of all you have to take ma'am this is bisected specimen. आप organ identify नहीं कर पाएंगे तो यू विल से कि मैम दिस इज बाइसेक्टेड स्पेसिमेन. बाइसेक्टेड है. एंड व्हाट एज यू कैन सी दिस इज हेट्रोजेनस अपीयरेंस. हेट्रोजेनस अपीयरेंस है, ठीक है ना. हेट्रोजेनस अपीयरेंस है. इसके अंदर आपका नोडुलर स्ट्रक्चर है. यहाँ पे ग्रे ब्राउन एरिया है, हेमरेजिक एरिया है, कुछ एरिया में सिस्टिक एरियाज है. सो हेट्रोजेनस एरिया और यू कैन से वेरीगेटेड अपीयरेंस. बट अब मैं आपको बता देती हूँ कि थायरेक्टमी का स्पेसिमेन है जो बायलेटरल थायरेक्टमी के साथ में आया था एंड शोइंग वेरीगेटेड अपीयरेंस. आप इसके आउटर सरफेस देख लीजिए, ये बम्पी आउटर सरफेस है. सो ये मल्टीनोडुलर गॉइटर पेशेंट को था, इसकी वजह से इसको निकाला गया था. और यू कैन से एट द आउटर सरफेस मल्टीपल कॉलॉइड फील्ड और हेमरेजिक एरियाज. जो ये स्पेसिमेन अभी मैंने आपको दिखाया मल्टीनोडुलर गॉइटर का, आई डिड द ग्रॉसिंग ऑफ द स्पेसिमेन. तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि बायलेटरल थायरेक्टमी के साथ में रिसीव हुआ था. इसके अंदर द आउटर सरफेस इज डिफ्यूजली एनलार्ज एंड द नोडुलर एंड बम्पी सरफेस. एंड व्हेन आई डिड द कट व्हेन आई एम शोइंग यू हियर द कट सरफेस दिस इज शोइंग वेरीगेटेड अपीयरेंस. और इस लोअर पोल में आपको एक नोड्यूल दिखाई दे रहा है बिकॉज मल्टीनोडुलर गॉइटर में भी आपको डोमिनेंट नोड्यूल हो सकता है बट वो कम्प्लीटली एनसर्कल नहीं होगा फाइब्रस कैप्सूल के साथ में. यहाँ पे आप देखिए हेमरेजिक एरिया, फ्यू आर सिस्टिक एरिया, फ्यू आर फॉर्म. सो शोइंग वेरीगेटेड अपीयरेंस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम यू कि व्हाट कैन यू सी इन दिस स्पेसिमेन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू कमेंट कि दिस इज इंटेस्टिनल स्पेसिमेन. यू कैन टर्न इट. दिस इज कट ओपन इंटेस्टिनल स्पेसिमेन. और आपको ये क्या नज़र आ रहा है, द इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग इज ए ग्रे वाइट मास. फर्म है, नोडुलर है, सर्कमस्क्राइब्ड है. तो ये फीचर आर वेरी इंपॉर्टेंट. और अराइज कहाँ हो रहा है, अराइज कहाँ से हो रहा है, ये सीरोजल सरफेस से अराइज हो रहा है. सो आप बताइए कि दिस इज इंटेस्टिनल स्पेसिमेन एंड अराइजिंग फ्रॉम द सीरोजल सरफेस देयर इज ए ग्रे वाइट नोडुलर स्ट्रक्चर, फर्म है, ताकि ये फीचर हेल्प करेंगे कि ये बेनाइन ट्यूमर है. तो आई डोंट नो कि ये ट्यूमर क्या था क्योंकि मुझे नहीं याद है बट ये ग्रॉस फीचर आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ द वे यू विल डिस्क्राइब योर ग्रॉस. मोरल ऑफ द स्टोरी इज वेन एवर वी आर प्रोवाइडिंग एनी ल्यूमिनल स्ट्रक्चर देन यू हैव टू सी what is there in the mucosa, the surface of the mucosa, then what is wall thickness and what is the changes on the serosa in this manner, either from serosa to mucosa or comment from mucosa to serosa, or see the what is there in the lumen. And if we are providing you any tumor then see कि either it is cystic soft tissue mass or firm, either it is fibrofatty or not. Then see कि well circumscribed, is it well circumscribed or not.
then see either this tumor is homogeneous or any heterogeneous area is there. If heterogeneous area is there, what are the component, कौन कौन से component है, cystic है, hemorrhagic है, necrosis है, कोई particular yellowish tinge लिए हुए है, क्योंकि हर tumor की खुद की एक importance होती है. So these feature you have to mention. Moral of the story is whenever we are providing any luminal structure, then you have to see what is there in the mucosa, the surface of the mucosa, then what is wall thickness and what is the changes on the serosa in this manner, either from serosa to mucosa or comment from mucosa to serosa, or see the what is there in the lumen. And if we are providing you any tumor, then see कि either it is cystic soft tissue mass or firm, either it is fibrofatty or not, then see कि well circumscribed, is it well circumscribed or not, then see either this tumor is homogeneous or any heterogeneous area is there. If heterogeneous area is there, what are the component, कौन कौन से component है, cystic है, hemorrhagic है, necrosis है, कोई particular yellowish tinge लिए हुए है, क्योंकि हर tumor की खुद की एक importance होती है. So these feature you have to mention.